A very good evening and a warm welcome to all our esteemed guests and to dear learners. I'm Dr. Ria Tukral from Radar Opus by BJNRX, and we are here today to discuss a very interesting topic: efficient case solving with Radar Opus software with Dr. BK Bhagat. We have Dr. BK Bhagat live with us right now. But before we go ahead with this webinar, most of you already know about Radar Opus software. But for those who don't, let me quickly give you an overview. So, Radar Opus homeopathic software is a name that we all are familiar with. It has an all-in-one revolutionary interface offering repertory, materia medica, and your patient files on one single simple platform. It comes enriched with more than 30 repertories, including synthesis repertory, which is highly reliable and flexible enough to suit your needs. With Radar Opus, you will have access to 1500 plus books and volumes in the references section, which is the largest collection among all the softwares available. The WinChip patient management tool helps you to keep track of your patients, consultations, posology, etc., and helps you to extract information very easily. There are a number of concepts and families for you to choose from to help in your case analysis. You can even let Dr. George Vitolkas help you in solving your case with his expert system. So you see why Radar Opus is the number one choice. It's fast, it's simple, it's flexible, reliable, and authentic. For Radar Opus users, we conduct free webinars, quizzes every week. We provide technical guidance, data protection, new updates, and free notes as well. For those who are interested, Radar Opus comes in these 5 packages. You can see the prices on your screens. For more information on each package, you can visit our website www.bjnrx.com. We do have a no-cost EMI offer available where you can pay an advance amount followed by 6 installments for next 6 months. So contact us at the given numbers, or you can mail us as well. If you still have doubts, you can always experience the software for free before buying it. Simply download the free demo version available on our website www.bjnrx.com. Thank you so much for listening. So coming back to this webinar, Dr. BK Bhagat sir, can we please have you here with us? So we have him right here with us. Thank you, sir, for being here. Sir, let me give you a small introduction so that our learners may know who you are. So everyone, Dr. B.K. Bhagat is one of the leading homeopathic physicians with 30 years of teaching and clinical experience. He is a professor and HOD in case taking and repertory department, Chandola Homeopathic Medical College and Hospital, Rudrapur. He is a joint secretary of HMAI State Branch, Bihar. His treatment specialty is homeopathic drug transmission from distance through hair. He also has a website www.drbkbhagatclinic.com, and he also holds online lectures and classes for those who want to learn. That's a little about you. Thank you, sir, for being here with us. And before I hand over to you, sir, let me quickly explain our learners how this interface works. So on the right-hand side panel of your screens, you have a short chat box. You may type your question or whatever message you have for Dr. B.K. Bhagat right there and press the button next to it to send it to us. I request you all to please send your questions only after the lecture is over, as that might disturb him. So without wasting any more time, let's give it over to you, sir. Let's start learning. Over to you. Thank you, Dr. Ria Thakral. Now, let us start
webinar before you. I would like to again thanks Dr. Riya Thakral. Thank you for joining me and Dr. Jaswalji and Rajesh Thakur, Rajesh Kumar. Now, welcome to my dear doctors, students, and all uh, all of you. Please, today we are going to discuss about my topic. आज मैं आप सभी को अपने हेलो आज मैं हाँ जी सभी सर। को हाँ आज मैं सभी को अपने टॉपिक के बारे में स्पष्ट रूप से हिंदी इंग्लिश मिला करके आप लोग के सामने रखने जा रहा हूँ। पुनः आप सभी को वेलकम एवरीबॉडी हु आर present a seminar. My topic is solving efficiently cases with radar opus seminar. आप सभी जानते हैं कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस जो है वो सिमिलम बेस्ड प्रैक्टिस है और इसका इम्पोर्टेंस ये तभी आपको देखने को मिलेगा जिसका रिजल्ट यदि आप लेना चाहते हैं। ये पेशेंट जब आप प्रैक्टिस में बैठ कर के देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि पेशेंट को हम सिमिलर मेडिसिन देंगे और तभी रिजल्ट आएगा, तो इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाउ टू गेट सिमिलर मेडिसिन। ये हमने देखा है अपने प्रैक्टिस लाइफ में कि सिमिलर मेडिसिन में पहुंचने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा टूल्स की ज़रूरत पड़ रहा है, जिस टूल्स का एक्सपीरियंस लास्ट 20 ईयर्स से मुझे प्राप्त है, जिसके माध्यम से हम अपने प्रैक्टिस को अपने सक्सेसफुल मुकाम पर पहुंचाने का काम किया है। और छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा केस हमने सॉल्व करके देखा है। ये एक कोई भी केस यदि सिमिलर मेडिसिन में पहुंचना है तो उसके लिए केस टेकिंग तो प्रॉपर होना ही चाहिए और प्रॉपर टेस्टिंग के बाद जो सिम्टम्स पेशेंट के थ्रू उभर के आता है उसे एनालिसिस एवोल्यूशन करना, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में पहुंचाना। उसके बाद हम लोग चाहे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिका नॉलेज या विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिका नॉलेज एंड रेपेट्री, इसके माध्यम से हम लोग कोई भी केस को सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। दिस इज द फैक्ट। और इस फैक्ट को सही रूप से पहुंचाने के लिए
सिमिलियम मेडिसिन में पहुंचने के लिए हम लोगों को ये चीज़ कुछ ऐसे चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग घर से इस पूरे प्रेजेंटेशन को देखने का काम करें और ऐसे ऐसे केस हमने सॉल्व किया है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड केस हो, चाहे एक्यूट फेज की अवस्था हो, किसी भी तरह का केस को सॉल्व करने के लिए जो ज़रूरत है, जो हमने महसूस किया प्रैक्टिस में विगत 20 साल से, क्योंकि हम 30 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं और 10 साल हमने विदाउट टूल्स, दैट इज नॉलेज, राडार ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसका आपने अभी इंट्रोडक्शन अपने डॉक्टर रिया ठकराल से सुना है, वह टूल से विगत 20 साल से हमने जुड़ा हुआ। हमने देखा प्रैक्टिस में ये सिमिलियम मेडिसिन में पहुंचने के लिए मैथमेटिका का नॉलेज तो अवश्य ही चाहिए, उसके बिना तो संभव ही नहीं है। अब मैथमेटिका से सिम्टम्स को लेकर के जो रेपर्टरी का जो फॉर्मेशन हुआ, जो सबसे अधिक मात्रा में जो ध्यान दिए हमारे जो स्टॉलवर्ड्स, जिनका आज रेपर्टरी को हम लोग फॉलो करते हुए आज अपने प्रैक्टिस को सक्सेसफुल प्रैक्टिस में पहुंचाने का काम करते हैं, बहुत सारे स्टॉलवर्ड्स कर रहे हैं। उसमें हम भी एक हैं जो आपके जैसा ही कुछ कठिनाई से का सामना कर रहे थे, और जिस दिन 20 साल पहले ये राडार ऑफ सॉफ्टवेयर मुझे प्राप्त हुआ, तो मैंने देखा कि जहाँ पर कोई भी केस सॉल्व करने के समय मैथमेटिका का नॉलेज में कभी कभी बहुत सारे केस में कन्फ्यूजन आता था। बहुत सारे आप जान ही रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, लवर्स मौजूद हैं यहाँ पर। इस बात को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, जो हमारे दिमाग का एक लिमिटेशन है, एक मेमोरी का मेरा एक लिमिटेशन है, जिस लिमिटेशन हम सभी के बीच ये मौजूद है। और ये लिमिटेशन होने के कारण हम लोग मैथमेटिका का साइन एंड सिम्टम्स जो भी स्टडी करते हैं, एक दूसरे से प्रैक्टिस लाइफ में कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये कंफ्यूजन होने के कारण ही आज हैंडमैन साहब ने इस बात को सोचा था और उन्होंने एक टूल्स की बनाने की उन्होंने अपने डिसाइपल को बताए थे, कि आप लोग एक ऐसे टूल्स बताइए। इसी क्रम में हम डिटेल नहीं जाएंगे, इसी क्रम में आप जान ही रहे, जो बर्निंगसन साहब ने पहली बार एक रेपर्टरी का इन्वेंशन किया जो बुक फॉर्म में आया, उसमें क्रमबद्ध होते होते केन साहब ने अपने रेपर्टरी को इन्वेंशन की, आया बुक फॉर्म में, और हम लोग उनका रेपर्टरी का फॉलोअर बने, प्रैक्टिस किए। और जैसे जैसे समय बीतते गया, हमने देखा ये चीज कितना इम्पोर्टेंट है। जो हम जो चीज भूल जाते हैं वो हमारे सामने एक टूल्स के रूप में जो रेपर्टरी आया है, उसका सिर्फ रूब्रिक बनाने का काम यदि हम सीख जाते हैं, रूब्रिक बनाना सीख जाते हैं, ये पेशेंट के लैंग्वेज के, ये पेशेंट जो भी लैंग्वेज अपने ये में बताता है वह अपने लैंग्वेज में बताता है, लेकिन हम लोग को उस लैंग्वेज को टर्न करना पड़ता है, कन्वर्सन करना पड़ता है रूब्रिक में। और ये आर्ट यदि आपके अंदर आ गया तो बाद बाकी जो काम है केस टेकिंग के बाद
फॉर्मेशन करना रूब्रिक में, और उसके बाद जो बनता है एनालिसिस करना, एवोल्यूशन करना, सिम्टम्स को टोटलिटी बनाना, जिसको हम इरेक्टिंग टोटलिटी करते हैं वो बनाना, उसके बाद रिपीटेशन करना, रिपीटेशन के बाद रिजल्ट, रिपीटियल रिजल्ट आता है, और जो मेडिसिन हमारे सामने दिखाता है उसके माध्यम से हम पेशेंट से सवाल करके, लीडिंग क्वेश्चन करके हम लोग सिमिलिमम मेडिसिन में पहुंच पाते हैं। जो बहुत सारे मेडिसिन कोई भी केस में हम जब हम लोग को सामने नजर आता है, ये दें कि वो दें, ये दें कि वो दें, ये जो कन्फ्यूजन ह्यूज शुरुआती दौर में जो भी बिगिनर है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। और सिर्फ उन्हीं के नहीं ले रही, आप जैसे जैसे आप इसके अंदर घुसेंगे, जैसे जैसे आप चाहेंगे कि हम सिंगल मेडिसिन में प्रैक्टिस करें, आप हेनमैन साहब की लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम को फॉलो करें। हम एक सिमिलिमम मेडिसिन में पहुंचने के लिए हम प्रयास करें। क्या आप जान लें, या हम सभी को ऑनेस्टली इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि विदाउट सिमिलिमम मेडिसिन नेवर बी क्योर, ये मानना होगा। और सिमिलिमम मेडिसिन में जब आप पहुंच जाएंगे तो बात ही कुछ और होता है, जो होम्योपैथिक के जैसा ब्यूटीफुल साइंस, मेडिकल साइंस हमने न कभी देखा है, न अभी देख रहे हैं। प्रैक्टिस करके जो हेनमैन साहब ने अपने ऑर्गेनन में जो हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर की चर्चा किया है, वह हर एक वर्ड सिमिलिमम मेडिसिन अप्लाई करने के बाद हम लोग को प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। यह मानना पड़ेगा, जब बिना सिमिलिमम मेडिसिन का हम सेकेंड एफोरिज्म, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, जो रैपिड जेंटल परमानेंट रेस्टोरेशन की बात किया गया है, इतने खूबसूरत एफोरिज्म का जो ये लाइन है, वर्ड है, हमको उस समय देखने को मिलता है जब हम सिमिलिमम मेडिसिन अप्लाई कर पाते हैं। हम सभी से इसी बात को समझाने के लिए कोशिश करेंगे। जब हमने प्रैक्टिस लाइफ में जितने भी केस आपने देखा है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, आगे आपको हम दिखाने जा रहे हैं, आपको वो सब केस देखने के बाद महसूस करना पड़ेगा कि एक मैथमेटिक्स की कंप्लीट नॉलेज होने के बावजूद भी आप कंफ्यूज निश्चित रूप से करेंगे। आपको लगेगा ये वो पेशेंट का लैंग्वेज किस मेडिसिन में है, ये सच्चाई है। और ये कंफ्यूजन को दूर करने वाला विदिन अ फ्यू सेकेंड आपका पास जो टूल्स है जो हम यूज करते हैं, जो मेरा टॉपिक है राडार ऑपस सॉफ्टवेयर के माध्यम से केस को सॉल्व कैसे हमने किया है प्रैक्टिस में, उसी के बारे में आज आपको क्लियर समझाने आए हैं, जो आप हमारे बीच हैं। हमें इस बात से गर्व है कि हम अपने आप को एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर कहलाने में किसी भी तरह का संकोच नहीं होता जी। हम आज अपने 30 साल में प्रैक्टिस के करियर में 30 साल से हमने टीचिंग लाइन में अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो एक्सपीरियंस है, ये हम अपने स्टूडेंट के बीच हम समझाते हैं, बताते हैं और दिखाते हैं कि ये देखिए ये कैसे हम लोग छोटा से छोटा केस, बड़े से बड़े केस, कॉम्प्लिकेटेड केस को जो हमारे दिमाग से बाहर है, जो किस मेडिसिन के अंदर है, वह एक जो राडार ऑपस सॉफ्टवेयर टूल्स है उसके माध्यम से आसानी से हम लोग यदि एक कला यदि सीख लें, हाउ टू कन्वर्सन द पेशेंट लैंग्वेज इनटू द रूब्रिक, सिर्फ एक कला को यदि हम सीख जाएं तो आसानी से वह रूब्रिक को हम लोग ढूंढ सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। और ये सॉफ्टवेयर की खास बात, जो यूनिक बात है, जो रिया ठकराल ने संक्षेप में आपके सामने रखी है, वह हमने महसूस किया
जो हमने महसूस किया है वह आपके सामने अब रखेंगे। तो सिर्फ ये बताने की कोशिश हम करेंगे, ये आप चाहे कितना हो कंफ्यूजन आपके अंदर चल रहा है और ये टूल्स यदि आपके सामने मिल जाए और कन्वर्सन आप सीख गए तो रूब्रिक में बदल जाएगा। और ये रूब्रिक का प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है वह बात तो सही है, जो कोई अच्छे जानकार रेपेटोरियन डॉक्टर से ही आप सीख सकते हैं, कोई टीचर ही आपको ऐसा गाइड कर सकते हैं जो कैसे पेशेंट लैंग्वेज को हम लोग रूब्रिक में कन्वर्ट करेंगे। और इसका जो बुक है, बुक फॉर्म है जो रडार ऑपस सॉफ्टवेयर के अंदर है, वह है केंट साहब का ही एनलार्जमेंट जो सिंथेसाइज किया गया है रेपेट्री, उसका नाम है सिंथेसिस रेपेट्री। सिंथेसिस रेपेट्री को यदि हम लोग बुक फॉर्म में प्राप्त कर लेते हैं और उसके माध्यम से यदि रूब्रिक को हॉन्टिंग करना शुरू करें और हॉन्टिंग करने और वह हैबिट में यदि हम ला देते हैं, अपने आप को प्रमोट करते हैं और उसके साथ जब हम रडार ऑपस सॉफ्टवेयर के साथ यदि जुड़ जाते हैं तो फिर जो होम्योपैथिक का जो ब्यूटी है, होम्योपैथिक साइंस का जो एसेंस है, वह सही माने में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जो मुझे मिला है। आज उसी लिए आज आपके सामने हम यहाँ मौजूद हैं कि आपको हम बताएं। ये इम्पोर्टेंट बात है, ये हम लोग कैसे इस बात को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम एक एक करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। केस जो आपके बताने जा रहे हैं वह केस है, पहला देखिए, जो डिफिकल्ट ब्रीदिंग का। वो केस आकर के आपकी क्लिनिक में बता रहा है पेशेंट, ये डॉक्टर साहब जब हम कोई कपड़ा नाक के ऊपर मेरा चला जाता है, मुंह के ऊपर ढक लेता है, तो हमारे सांस लेने में बहुत तकलीफ होता है। और यह बहुत ही स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है जो बार बार इस बात को रिपीट कर रहा है। और दूसरा वो जो स्ट्राइकिंग सिम्टम है वह बोलता है कि भीड़ वाले घर में चल जाते हैं तो सांस का तकलीफ और डॉक्टर साहब मेरा बढ़ जाता है। इस टाइप से आपके सामने बोल रहा है। तो आप आराम से पेशेंट लैंग्वेज को आप रूब्रिक में कन्वर्ट कर लीजिए। आप रूब्रिक में कन्वर्ट करेंगे, आपको मेडिसिन अर्जेंटम नाइटिकम दिखाएगा। जी रेस्पिरेशन चैप्टर में आप चले जाइए रडार ऑपस सॉफ्टवेयर के अंदर और वहां पर डिफिकल्ट कवरिंग नोज वह आ जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये कैसे हम लोगों ने अर्जेंटम नाइटिकम में पहुंच जाते हैं। देख लीजिए जो आपको स्क्रीन पर आ रहा है और फ्यू सेकंड्स के अंदर आपको रिपीटेड रिजल्ट मौजूद हो जाएगा जो अर्जेंटम नाइटिकम को दिखाएगा। क्या यह ऑनेस्टली हम लोग को इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा डॉक्टर स्टूडेंट, ये आपका ये दो सिम्टम कभी भी दिमाग में ये बात नहीं आएगा कि ये अर्जेंटम नाइटिकम मेडिसिन हो सकता है। लेकिन ये कमाल है ये रडार ऑपस सॉफ्टवेयर का, जो हम आसानी से उसमें हम पहुंच जाते हैं और अर्जेंटम नाइटिकम को हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रडार ऑपस सॉफ्टवेयर। और ये सॉफ्टवेयर यदि आपके बीच है तो मानिए कि आप निश्चित रूप से इसको आप सॉल्व करेंगे। हमने दिया है, जैसे ये केस आया हमारे पास, हम
उसे अर्जेंटम नाइट्रिकम दिया और देने के बाद वो पेशेंट ठीक हो गया। जादुई रिजल्ट देने के बाद आप देखते होंगे स्क्रीन पर आ गया है अर्जेंटम नाइट्रिकम, आप देख रहे हैं। और ये अर्जेंटम नाइट्रिकम जैसे हमने दिया पेशेंट को विद इन ए मिनट पेशेंट को रिलीफ होना स्टार्ट हो गया। और नेक्स्ट हुआ जो है टाइम जब भी आया बोला डॉक्टर साहब हम ठीक हो गए। अब आइए एक केस आपको बताते हैं ब्रोंको निमोनिया का। फिर दोबारा एक केस, बच्चा जन्म के 7 दिन बाद से उसको जुकाम, खांसी, सर्दी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। और उसी बच्चे के अंदर अंधेरा होने पर खांसी, बुखार और सांस में तकलीफ बढ़ जाता था। बाद बाकी और स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हमें नहीं मिला। हमने इसी दोनों सिम्टम्स को ही हमने बेस बनाया, टोटलिटी बनाया और इसको हमने देखा कि कौन सा मेडिसिन आएगा। तो देखें किसी के दिमाग में आएगा, ऑनेस्टली बताइए, जो हम अभी दिखा रहे हैं आपको, ये रेस्पिरेशन डिफिकल्ट चिल्ड्रेन इन न्यूबॉर्न डार्कनेस एग्रावेशन, इसमें इथुजा सिनापियम आता है। ऑनेस्टली इस बात को एक्सेप्ट करना होगा डॉक्टर, स्टूडेंट, ये हम लोगों के दिमाग में कभी इथुजा सिनापियम नहीं आएगा, ये मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आया और किसके जरिए आया? ये हमारे पास ये टूल्स था, ये राडारोपस टूल्स था, जिस टूल्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इथुजा सिनापियम यहाँ पर आ गया और हम लोग प्रिस्क्राइब किया और पेशेंट ठीक होता है। बच्चे ठीक होते हैं विद इन ए मिनट, विद इन 5 मिनट्स पेशेंट की रिलीफ होना स्टार्ट हो गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ राडारोपस सॉफ्टवेयर, दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी, दिस इज द एसेंस ऑफ होम्योपैथी। आप यदि होम्योपैथी का एसेंस लेना चाहते हैं, होम्योपैथी की मजा लेना चाहते हैं, ये होम्योपैथी के बारे में जो सेकंड अफोरिज्म में कहा है, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट क्योर, ये यदि आप देखना चाहते हैं तो सही माने में आपको इस टूल्स की यूज की जरूरत पड़ेगा। हम ऐसे आपको नहीं बता रहे, हम 2 साल, 5 साल, 10 साल की प्रैक्टिस में नहीं है, हम 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 30 साल से इस टूल से जुड़े हुए हैं। हमने पहले भी मैथमेटिका का आधार पर प्रैक्टिस किया है, रिजल्ट मिला है, नहीं मिला ऐसा बात नहीं है, हम नहीं कहेंगे। लेकिन जितना अभी आसान हो गया है, क्योंकि आप जान रहे हैं, ये मेरे डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है, मान लीजिए आपको केस देखना है, आप बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है आपके क्लिनिक के सामने, बहुत सारे पेशेंट आपको वेटिंग में है, आप चाहते हैं कि हम उसको रिजल्ट दें और भी केस को हम देखें, तो आपके लिए समय कम है, इसलिए जो आपको और भी केस तो देखना है ना डॉक्टर, आपको और भी केस तो सॉल्व करना है ना, सिर्फ इसी केस को तो नहीं देखना। तो आपके लिए समय कम है और समय का बचत जो है ना, ये टूल्स आपको करता है, ये राडारोपस आपको करता है। और सर आपने सिंथेसिस के अलावा कोई दूसरी रिपोर्टरी यूज करी है क्या? क्योंकि मुझे सिंथेसिस में डार्कनेस एग्रेवेशन वाला रूब्रिक नहीं दिखा। डार्कनेस रेस्पिरेशन नहीं है मैडम? नहीं दिख रहा मुझे, मैं आपको दिखाती हूँ। और हो सकता है जो आप अभी हम अपडेट अलर्ट ये यूज कर रहे हैं ना, इसलिए हो सकता है आप जो दिखा रही हो वो अपडेट अलर्ट नहीं होगा, इसलिए हो रहा है। कोई बात नहीं है, उसके लिए कोई बात नहीं है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो मौजूद हैं, उनको पता है कि जो कुछ भी हम दिखा रहे हैं वह अपना किया हुआ प्रैक्टिस का है।
इसी ढंग से अनगिनत आपको केस हम दिखाएंगे, चाहे मिजल्स का सप्रेशन हुआ पैरासिटामोल टैबलेट से, उसके बाद उसको जो है जो इरप्शन डेवलप कर रहा था मिजल्स में, उसका अचानक उसका दब जाता है मिजल्स, उसके बाद वो ठीक, उसके बाद उसको खांसी शुरू हो जाता है, खांसी हवा में बढ़ जाता है, खुला हवा में जा करके, और खास करके उसको भूख प्यास सब खत्म हो जाता है, सिर्फ वो बीटर चॉकलेट पसंद करता है, और बीटर चॉकलेट मिलता है तभी खा पाता है, नहीं तो कुछ नहीं लेता। बच्चा है वो, कुछ भी आप ऑफर कर रहे हैं, क्या खाइएगा? बच्चा बोल रहा है हमको बीटर चॉकलेट चाहिए, तो बीटर चॉकलेट चाहिए, ये हमारे दिमाग में तो नहीं है। हाँ, पैरासिटामोल टैबलेट खाया है और मिजल्स को दब गया है, और उसके बाद उसकी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, हमारे दिमाग में बात नहीं आ रहा है, तो हम आसानी से इस टूल्स को यूज करेंगे डॉक्टर, स्टूडेंट, और इस टूल्स को यूज करेंगे और देखेंगे डायबिटीज में यदि हम जाते हैं, मिजल्स में, डायबिटीज में मैडम मिजल्स में आप जाइए, इरप्शन सप्रेस्ड व्हेन द ऑलरेडी वहां पर है ना, वह है। उसके बाद नेक्स्ट जो रूब्रिक है सप्रेशन में ले लीजिए, है ना, और उसके बाद खुला हवा में उसके एग्रावेशन लेता है, कफ ओपन एयर एग्रावेशन होता है, तो ये, और जेनेटिक में जाकर के फूड एंड ड्रिंक्स में जाएंगे, चॉकलेट डिजायर में जाकर के वहां पर सब रूब्रिक आएगा बीटर चॉकलेट। आप चॉकलेट में जाएं, चॉकलेट को डिजायर में जाएं, चॉकलेट के नीचे डिजायर है, डिजायर चॉकलेट, उसके नीचे बीटर चॉकलेट आएगा, है ना, उसको आपने ऐड करें, और अब देखिए कौन सा मेडिसिन शो कर रहा है, 2, 3 और तीसरा देखा है, ये कफ ओपन एयर एग्रावेशन, सर कफ ओपन एयर, ओपन एयर एग्रावेशन, तो कौन सा मेडिसिन आया, कौन आया, फॉस्फोरस। तो कहने का मतलब है डॉक्टर, स्टूडेंट, है ना, दैट इज द टूल्स, और ये टूल्स का जो यूनिक बात ये है कि आप यदि इस टूल्स को यूज करते हैं और विदिन ए मिनट, विदिन ए सेकेंड आप चाहेंगे तो इस केस को आप आराम से फॉस्फोरस सिलेक्शन करेंगे और देंगे और रिजल्ट आएगा। दैट इज द यूनिक पार्ट जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ऐसे अनगिनत कई केस हम आपको दिखा रहे हैं, जो अनगिनत है, जो आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे केस है, बहुत सारे केस है जो इतना समय के अभाव से नहीं दिखा पाएंगे। आपको 2-3 केस और हम दिखाएंगे जो प्रैक्टिस लाइफ की बहुत यूनिक केस है, और जो ये तो सब छोटा केस अभी हम दिखा रहे हैं कि 2-3 सिस्टम के माध्यम से हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो हम लोग दिखाने जा रहे हैं। क्या हो गया सर? हाँ, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? प्रॉब्लम ना, नेक्स्ट वाला जो है वो नहीं आ रहा है। कौन सा? अच्छा, नेक्स्ट का, जी मैं ट्राई कर रही हूँ। और नेक्स्ट वाला दिखाइए, और ये सामने से वो जो है कट रहा है।
तो कौन सा वाला केस चाहिए? नहीं नहीं, बैक चाहिए। बैक नहीं जाना है, आगे जाना है, फॉरवर्ड करना है, आगे फॉरवर्ड, आगे जाना, आगे जाना, जा आगे रही जाना। हूँ। आगे वाला केस दिखाएंगे। आगे वाला केस है, 2-3 केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जो हम लोग रडार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसको हमने देखा है। और आगे मैं और जाइए, फॉरवर्ड कीजिए। छोटा केस हम लोग अभी बड़ा केस में जा रहे हैं। ठीक है सर। क्या हो गया सर? ये वाला ये 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 जो है घूम रहा है, तो सामने कोई अ दूसरा केस स्क्रीन आ ऑफ गया। इंसैनिटी आ रहा है मेरे सामने। हाँ हाँ हाँ, उसको थोड़ा सा हटा आपको नहीं देना दिख है। रहा है? नहीं, एक मिनट, फिर से स्टार्ट। अब सर एक काम करिए, जो स्लाइड्स का आइकन है ना, उस पर हाँ क्लिक कर लीजिए। जो राइट पैनल में नीचे से सेकंड आपको हाँ, आइकन दिख रहा होगा। नहीं, ऊपर का जो मेरा है ना वो दिखाना शुरू कर दिया है, इसलिए हमको प्रॉब्लम आ गया वहाँ पर। सर आपको स्लाइड अपनी तरफ से स्टॉप करके स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर आपको नहीं दिख रही है तो। हाँ, आप कर दीजिए। मैं आप कर कर रही हूँ तो भी आपको नहीं दिख रहा है। नहीं, उसको सामने कोई एक स्क्रीन आ चुका है जो वहाँ से हट नहीं रहा। उसके सामने स्क्रीन आ गया। कोई दूसरा स्क्रीन आ गया, शेयर आ रहा, क्या आ रहा है। तो आप ब्राउजर पे क्लिक कर लीजिए ना अपने। उसको सरा दे देगा। ब्राउजर क्लिक कर लीजिए सर। हाँ, ब्राउजर। अच्छा, डिस्कनेक्ट कर दो। क्या हो गया सर? वो अभी तक गया नहीं हो। क्या लिखा रहा है तो उसके ऊपर? अभी कर रहे हैं, फिर से दोबारा। There is some technical error. Please keep patience. We'll be back. Dr. BK Bhagat sir will be back in a moment. He's connecting again so that the technical error is solved. Hi, very good morning to all my dear teachers, doctors, students and lovers of homeopathy. Welcome to my coaching institute. Myself, Dr. BK Bhagat, founder teacher and mentor in this institute. मैं आज आप लोगों के लिए
स्पेशली उन स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स एंड लवर्स ऑफ होम्योपैथी के लिए कैरियर ओरिएंटेड कोर्स ऑफर करने आया हूँ। उसके बारे में आप लोगों को समझाने हम आपके बीच मौजूद हैं। आप सही सुने हैं, ये कैरियर ओरिएंटेड कोर्स होम्योपैथिक जगत में ये पहली बार मैं विगत 10 सालों से सक्सेसफुली चला रहा हूं, जिसमें मोर देन 300 डॉक्टर्स बनकर के अपने करियर को सक्सेसफुली और ब्राइट किया है। जिसमें कंफ्यूजन था अपने करियर को लेकर के, इसमें कॉन्फिडेंस लेवल कम था, इसमें लगता था कि हम काश यदि और अच्छे नॉलेज हमें मिलता तो अपनी फील्ड में इंस्टीट्यूट से डिग्री लेने के बाद। आपका टाइम ज़्यादा क्वेश्चन। हेलो सर। हेलो। हाँ जी सर, ये लीजिए। अब ठीक आ रहा है? हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम जो नेक्स्ट वो जो व्हाइट आ रहा था ना, उसमें प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, वो जो उसको रेड और कोई दूसरा कलर मैं आपके लिए स्लाइड चेंज कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक ठीक है, ठीक है। तो चेंज करते जाइए, चेंज करते जाइए। ठीक है। और चेंज फॉरवर्ड करते जाइए। हाँ, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी रुकिए सर। रुकिए, प्रीवियस कहाँ आप मुझे रोक दीजिए ना सर, जहाँ पे रोक। ठीक, प्रीवियस में जाओ, प्रीवियस में एक केस ऑफ इंसिनिटी को देखा ना, फिर प्रीवियस, फिर यही तो है सर। हाँ ठीक है, अब फॉरवर्ड कीजिए, अब आगे ले जाइए। हाँ ठीक है, तो चलिए डॉक्टर, स्टूडेंट, फिर हम लोग एक केस समझने की प्रयास कर रहे हैं। एक केस हमारे पास आया 30 साल का इंसेंट पेशेंट, जो कि जब शादी होकर के वो पेशेंट आया, मैरिड वुमेन, आफ्टर मैरिज शी वाज नॉट सेटिस्फाइड हर हस्बैंड, फैमिली मेंबर्स एंड होम आल्सो। वो किसी भी फैमिली मेंबर से, परिवार से उसको पसंद नहीं था, जिसके चलते वो हस्बैंड को वो कहती है कि हमको घर पहुंचा दीजिए, हम नहीं रहेंगे यहाँ पर, लेकिन वो नहीं पहुंची और उसके बीच क्या होता है, उसको प्रेगनेंसी आ जाता है। फॉरवर्ड कीजिए, है ना, नेक्स्ट। तो उसके बाद तीन महीने के बाद जो है वह प्रेगनेंसी हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, और उसी अवस्था में उसका जो है डिलीवरी हो गया, और डिलीवरी होने के बाद एक बच्चे हुए, और वह बच्चे होने के बाद उसको एक मैनिया स्टार्ट हो गया, वायलेंट मैनिया स्टार्ट हो गया डिलीवरी के बाद, और उसके बाद धीरे धीरे वो पैरोक्सिजिमल अटैक होना स्टार्ट हो गया। वो नेक्स्ट, तो पैरोक्सिजिमल अटैक स्टार्ट हो गया। वह बहुत जगह अपने प्रॉब्लम को लेकर के एलोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी बहुत जगह दिखाने की कोशिश की है लोग। कम से कम मैंने 30 साल तक भटकते रह गए इधर उधर, बहुत जगह, इवन की बहुत साइकिक हॉस्पिटल में भी उनको एडमिट करना पड़ा। लेकिन एक दिन की घटना है, जो फॉरवर्ड, तो एक दिन की घटना है, वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ अचानक घर पर, और हम वो आए वो लोग कॉल में, और कॉल बुलाने के लिए हम गए, कॉल देखने के लिए पेशेंट को। जैसे हमने देखा तो वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो वो पेशेंट जो है ऑलरेडी वायलेंट अवस्था में चल रही है। स्ट्रेंथ उसका कहाँ से आ गया भगवान जाने, बहुत तेज, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ उसको बढ़ गया था। आँख जो है बड़ा बड़ा, वो डायलेटेड, और एक तरफ देखती थी, हंसती थी, खुद से कुछ बोलती थी, बहुत ही टॉकेटिव, नेक्स्ट टॉकेटिव पर्सन बहुत ज़्यादा थी। उसकी हस्बैंड से हम जब पूछे कि ये अवस्था जो अभी हम देख रहे हैं, उसके अलावा भी कोई सिम्टम आप बताइए,
तो वो भी बोला हाँ डॉक्टर साहब सिम्टम्स तो और भी 2-3 चीज ऑब्जर्व करने की चीज है, जब भी ऐसे अटैक होता है तो उसको नींद गायब हो जाता है, नींद नहीं आता है। और मैक्सिमम टाइम हम देखे हैं जब उसको जब गुस्सा होता था उसके बाद ही ज्यादा अटैक होता था। लेकिन यदि वह सही माने में यदि पूछा जाए तो वह यह अवस्था जो अभी देख रहे हैं वो अवस्था उसका सही माने में जो है ये नहीं है। उसकी जब वो अच्छी रहती है तो उससे अच्छा भला आदमी कोई अच्छा आदमी कोई हो ही नहीं सकता। इतना माइल्ड बिहेवियर है, इतना सिंपल व्यक्ति है जो भोले भाले जिसको एक वर्ड में कह सकते हैं ऐसा है। नेक्स्ट, तो इतना अच्छा उसके अंदर बिहेव है जिसका वर्णन नहीं है। जब हमने पास्ट हिस्ट्री को पूछा तो पास्ट हिस्ट्री में बोले कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, सिंपली जो हमको पता चला है वो आपको हम बता सकते हैं, जो सिर्फ बच्चे में उसको डेंटिशन पीरियड में डायरिया हुआ था, बाद बाकी कुछ नहीं। लेकिन एक चीज हुआ था शादी के 10 साल पहले वो डॉग बाइट हुआ था जिसका ट्रीटमेंट उनको हर्बल मेडिसिन से किया था, है ना। और हमने जो उसको देखा जो चूंकि उसकी जो शादी हुआ, शादी के बाद उसको वहाँ ससुराल पक्ष जो है उसको अच्छा नहीं लगा और वो जाना चाह रही थी और जबरदस्ती उसके हस्बैंड उसको रोक दिए थे, इसलिए वह ग्रिप में चली गई और वह ग्रिप का नतीजा है जो उसको यह देखना पड़ा है। नेक्स्ट, तो ये उसके बाद सारा प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, सेक्सुअलिटी लाइक उसको सिर्फ म्यूजिक था, हॉबी बुक पढ़ना था, हैबिट कुछ नहीं था, ईटिंग हैबिट में नॉन वेज ज़्यादा खाती थी, रेगुलर डिजायर सिर्फ सावर एंड फिश था, बंगाली फैमिली के था, है ना, वार्म फूड पसंद था, प्यास उसको नहीं था। नेक्स्ट, तो एपिटाइट बहुत ही जब भी प्रॉब्लम होता था एपिट नहीं रहता था, बाद बाकी सब आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर जो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। नेक्स्ट, और इसके बाद नींद में तो जो बताया जो स्लीपलेसनेस रहता है, जब ये अटैक में रहती थी तो एक होता था साइकिल जो है उसका रेगुलर साइकिल था, मोटा मोटी जो बैक पेन स्लाइटिस जो होता था वही होता था, बाद बाकी अदर्स कोई कंप्लेंट उसके नहीं था। एज ऑफ मैरिज जो था वो अभी 12 साल का था, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में नॉर्मल डिलीवरी, बाद बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला इशू था इसके अंदर, है ना। प्रेशर भी इसके बहुत नॉर्मल थे। नेक्स्ट, वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, पल्स भी नॉर्मल, वेट भी 7 kg, टेम्परेचर वॉज हर चीज नॉर्मल, है ना। नेक्स्ट, तो ऐसे आप देख रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है। हेयर डार्क डैंड्रफ जो है, बाद बाकी जितने भी कंप्लेन वो कुछ नहीं मिला, फिजिकली बहुत ज्यादा कुछ जनरल सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं मिला। सबसे ज्यादा जो हमको देखने को मिला उसका मेंटल सिम्टम, फिजिकल जनरल सिम्टम या फिजिकल सिम्टम बहुत ज्यादा मार्केबल नहीं था। तो हमने सोचा जे क्यों नहीं हम इस केस को हम लोग कैंट्स साहब के अनुसार हम लोग एनालिसिस करें, इसको एवोल्यूशन करें, जो जहाँ पर मेंटल जनरल बहुत अधिक मात्रा में है, तो उनकी फिलोसफी के हिसाब से हमने मेंटल जनरल को प्रायोरिटी दिया। और मेंटल जनरल में जो आया हुआ जो हमने कंसीडर करने की कोशिश किया हुआ वायलेंट एंगर, टॉक्स ऑल द टाइम, ब्रेक थिंग्स भी था, एब्यूसिव भी था, कंप्लेंट्स, एग्रावेशन फ्रॉम कंसोलेशन, सिंपैथी भी था। अदर्स हमेशा जब भी किसी को देखती थी जब उस पीरियड में तो सस्पेक्ट नेचर पर देखती थी, एटीट्यूड उनका सस्पेक्शन था। नेक्स्ट, है ना, तो ये सब सिम्टम्स था। तो हमने टोटलिटी बनाया, रूब्रिक में चेंज किया, उस जितने भी हमने देखा था जो भी हमको मिला, तो उसमें हमने सिर्फ राडारोपस सॉफ्टवेयर के टूल्स में हमने गया और उसको ओपन किया और देखने के बाद जो हमारे पास जो टोटलिटी आया वो टोटलिटी जो आप ऑलरेडी नेक्स्ट मैडम, नेक्स्ट दिखाना नहीं है, ऑलरेडी चार्ट बना हुआ है मैडम, ऑलरेडी चार्ट बना हुआ, आप खाली उसी केस को, हाँ नेक्स्ट दिखाइए। तो राडारोपस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो टोटलिटी आपको हम दिखाए, प्रीवियस दिखाइए मैडम, प्रीवियस, तो उसमें हमने प्रायोरिटी जो दिया वो इंसेनिटी पेशेंट के चैप्टर में, माइंड के चैप्टर में, जो ग्रीफ आफ्टर इसके हमने लिया इंसेनिटी में ही स्ट्रेंथ विथ इंक्रीज हमने लिया, इंसेनिटी में ही वायलेंट हमने लिया, इंसेनिटी में ही हमने पैरेक्सिजिमल अटैक हो रहा था, सब हमेशा अटैक नहीं करता था इसलिए पैरेक्सिजिमल हमने लिया, इंसेनिटी में ही स्लीपलेसनेस विथ लिया, इंसेनिटी में ही ओमेन थी इसलिए ओमेन का हमने प्रायोरिटी दिया, और नेक्स्ट वन हमने लिया था वह है लोकवासिया। ये 7 रूब्रिक जो हमने कंसीडर किया और राडारोपस सॉफ्टवेयर को हमने यूज किया। आप समझ ही रहे हैं राडारोपस सॉफ्टवेयर ही नहीं रहता तो क्या आपको लग रहा है कि हम लोग इस टाइप की केस को देख करके हम लोग जो सिलेक्शन करेंगे वह
आसानी से जो रेपेट्रियल चार्ट आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो हम लोग वहां तक पहुंच पाएंगे? हम तो नहीं पहुंच पाते हैं। वो आप देखिए रेपेट्रियल चार्ट जो बेलाडोना आपको दिखा रहा है, बेलाडोना 7 को ही कवर किया, 13 पॉइंट उसको मिला। स्ट्रामोनियम 6 को कवर किया, 10 पॉइंट उसको मिला है। प्लेटिना 3 सिम्टम्स को कवर किया, 5 पॉइंट मिला है। और ये देने के बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला, बहुत ही कम समय में उसको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया और नेक्स्ट डे ही वो अब जो है वो ठीक हो गई। इसी ढंग से उसको यह हम लोग फॉलोअप स्टार्ट किए, देखे तो ग्रेजुअली वह इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया, इम्प्रूव होते ही चला गया। और उसके लिए 1M के बाद हम लोग को फिर 10M देने की जरूरत पड़ा। फिर 10M के बाद फिर जब केस लौटा नेक्स्ट, तो केस बीमारी फिर जब पैराक्सिसमल अटैक हुआ फिर लौट गया, तो फिर हमको लगा कि ये कहीं ना कहीं कोई ऐसा ऑब्स्टेकल है जो उसको क्योर करने नहीं दे रहा है। तो हमको ध्यान में आया जो मेरा एक्सपीरियंस भी है जे जहाँ पर डॉग बाइट है वहाँ डॉग बाइट का कुछ ऑब्स्टेकल जरूर आ रहा है, तो वहाँ पर हम उसको डॉग बाइट को हमने एक बार लाइसिन 1M एक तो इंटरकरेंट रेमेडी के हिसाब से उसको यूज किया, है ना। उसके बाद फिर हम लोग बेलाडोना दिए और उसके बाद पेशेंट फिर बिल्कुल बहुत दिनों तक ठीक रहा। आप देख ही रहे, 2 13 को हमने 7 10 12 को दिए थे, 3 2 13 को आया, फिर बेटर वो आया, लेकिन 5 5 13 को फिर जाकर के केस जो है वो फिर प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया और फिर वायलेंट अटैक स्टार्ट हो गया। तो फिर हमने देखा कि उसकी फैमिली में न्यूमरस डिजीज का एक हिस्ट्री था, जो इसकी फैमिली में बहुत सारे रोग से सफ़र कर रहा था। तो इससे क्या नाम है राडार ऑफ परसेप्टिव के अंदर जनरल्स में जाकर के हमको देखने को मिला जी फैमिली हिस्ट्री न्यूमरस डिजीज। जब हम फैमिली हिस्ट्री न्यूमरस डिजीज हमने देखा, उसमें हमको कार्सिनोसिन मिला और कार्सिनोसिन को हमने प्रिस्क्राइब किया और या उसके बाद पेशेंट का रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया। और फिर जब माइल्ड अटैक हुआ तो फिर हमने बेलाडोना हमने नेक्स्ट मैडम नेक्स्ट तो फिर बेलाडोना हमने हेलो नेक्स्ट हाँ जी सर। नेक्स्ट फॉरवर्ड करें, फॉरवर्ड। उसके बाद उसके बाद जो है ये केस जो है ग्रेजुअली फिर बेलाडोना सीएम देना पड़ा और बेलाडोना सीएम देने के बाद पेशेंट जो है वो जाकर के ठीक हुआ। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ राडार ऑफ अ सॉफ्टवेयर, दिस इज द ब्यूटी ऑफ रेपेटाइजेशन रेपेटरी, और हम आसानी से एक ही टूल्स में जा करके इतनी चीज हमको देखने को मिला। नेक्स्ट स्लाइड। नहीं नेक्स्ट प्रीवियस हो गया था नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट सर आप इस पे थे ना? नेक्स्ट हाँ ठीक है, हाँ ठीक है आप दिखा। तो कहने का मतलब है कि वैसा केस जो है आप जो है आराम से हम लोग सॉल्व किए। नेक्स्ट आप देखिए जब हम छोटा से छोटा 2-4 आपको ये दिखा रहे हैं, ज़्यादा नहीं, कि बहुत आसानी से हम लोग कैसे सिंगल सिम्टम्स के आधार पर जो हमारे दिमाग में नहीं रह सकता है वो राडार ऑफ सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट मैडम देख सकते हैं कि हॉस्पिटल सिम्टम्स के आधार पर भी हम इस राडार ऑफ टूल को यूज करके हम मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये जो हमारे मैथमेटिका के आधार पर हम कभी भी नहीं सोच सकते, हमारे ध्यान में नहीं आ सकता, जो हमारे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन वह कंफ्यूजन जो हमारे पास सामने जो राडार ऑफ टूल हमारे सामने है, तो निश्चित रूप से हम उस कंफ्यूजन मेरा दूर होगा और आसानी से बहुत ही विदिन सेकेंड हम उस केस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैडम नेक्स्ट हेलो हाँ जी सर। हाँ नेक्स्ट कीजिए मैडम। कर रही हूँ सर। कहने का मतलब है कि हम लोग यदि चाहते हैं कि
हम हम एक अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे क्लासिकल डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमको अच्छे मुकाम पर पहुंचना है, हमको एक सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइबर बनना है। हनीमैन साहब की जो अपना फिलॉसफी है, जो अपना सपना है, जो वो लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम, इसको हम मेंटेन करते रहें। आज के ज़माने में आप देख रहे हैं कितना पॉलीफार्मेसी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसको हम लोग को रोकने के लिए और होम्योपैथी का ब्यूटी आपको सीखना है, होम्योपैथी के एसेंस को समझना है। तो आप निश्चित जानिए कि ये एसेंस आपको तब मिलेगा जब आप इस टूल्स को यूज करेंगे। इस टूल्स को यूज करने से जो आपको, मेरा कहने का मतलब है, जो हमने प्रैक्टिस लाइफ में देखा है, ये टूल्स ऐसा एक टूल्स है जो आसानी से हम लोग जो है विदिन कुछ सेकेंड मिनट हम लोग रूब्रिक में, सही रूब्रिक में पहुंच जाते हैं, हंटिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं और रेपिटेशन के माध्यम से आसानी से सिंगल मेडिसिन पर पहुंच करके प्रिस्क्राइब करते हैं। और मिनिमम मेडिसिन जब भी हम प्रिस्क्राइब करेंगे तो उससे जो है पेशेंट निश्चित रूप से क्योर होता है, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। और मिनिमम मेडिसिन होगा तभी आप ट्रीटमेंट जो है, आप ट्रीटमेंट में आप सक्सेस होंगे। दैट इज द ये हम लोग को इस बात को मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये हमारे यह सिद्धांत जो है वो सिमिलिबस क्यूरेंचर है, और मिनिमम मेडिसिन तक जब तक हम नहीं पढ़ेंगे इसका ब्यूटी, इसका एसेंस हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो होम्योपैथिक साइंस की जो ब्यूटी है, जो एसेंस है, जो अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने आप को सक्सेसफुल डॉक्टर के रूप में देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जानिए ये आपको ये टूल्स आपको बहुत ज़्यादा मददगार होगा। जो हमारे लाइफ में किया है, हमने अपने लाइफ में 30 साल के करियर में हमने देखा है, ये एक से एक केस, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा केस, क्रिटिकल से क्रिटिकल केस हमारे यहाँ आते हैं और हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं और मैक्सिमम केस में हमको सफलता मिलता है ना। तो इसका श्रेय जो है, इसका जो क्रेडिट है वो जो है रनर अप सॉफ्टवेयर की भी जाता है। इसलिए जो उसका यदि नॉलेज आपको मिल जाए, उसके नॉलेज आपको दे दिया जाए, आपको कन्वर्सन ऑफ रूब्रिक का टेक्निक आपको सिखा दिया जाए, समझा दिया जाए, तो आप एक एक्विट से लेके क्रॉनिक चीज पर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और खास करके क्रॉनिक डिजीज की बात हम निश्चित रूप से आपको हम कहेंगे, जो क्रॉनिक डिजीज में यदि आपको सफलता यदि नहीं मिलता है तो होम्योपैथिक फील्ड में आना ही बेकार है। हम यह समझते हैं कि होम्योपैथिक फील्ड में यदि आपको आना है, अपने आप को सर्वाइव करना है, अपने आप को नाम, जस, प्रतिष्ठा, इज्जत, आप पैसा, हर कुछ आपको देखने को मिलेगा जो आज हमें मिला है, जो हमको जानते हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट, हमारे डॉक्टर हमको जानते हैं, बहुत सारे कॉलेज वाले टीचर हमको जानते हैं, जो जानते हैं जो हम किस ढंग से प्रैक्टिस करते हैं। हमारे अपने प्रैक्टिस का अपना जो स्टाइल है, अपना जो यूनिक स्टाइल है, वो जो सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन, वो सभी जगह हम करते हैं, चाहे कुछ चाहे क्रॉनिक। इसलिए हम सबको आग्रह करेंगे, आप हम सबको निवेदन करेंगे जो हमने जिस ढंग से इस प्रैक्टिस में, अपना प्रैक्टिस में अपनी सक्सेस पाया है, आप भी उसे ही आपको सक्सेस आपको भी मिले। होम्योपैथिक का विकास हो, होम्योपैथिक को आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर सकते हैं। ये होम्योपैथिक इतना सुंदर साइंस है, इतना ब्यूटी साइंस है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसका जहाँ पर कहावत है, जहाँ पर ये एलोपैथिक एंड होता है वहाँ पर होम्योपैथिक की शुरुआत होता है। यह बस सच्चाई है। इसलिए हम खुद इसलिए कह पा रहे हैं कि हमने उस ये से गुजरते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं, डॉक्टर, स्टूडेंट्स, हम ये कहेंगे कि सभी हमारे यहाँ जब एलोपैथ फेल हो जाता है, जब एलोपैथ उसको नकार देता है, जब हमारे हाथ से अब नहीं है, आप बाहर ले जाइए, हायर सेंटर ले जाइए, हमारे यहाँ कोई क्योर नहीं है, हमारे यहाँ कोई उपाय नहीं है, तो वह केस जब हम लोग के पास आता है तो हम उसमें देखते हैं और पेशेंट क्योर होता है। आगे 2 केस और था जो हम आपको दिखा पाते, समय के अभाव से नहीं दिखाए, लेकिन इतना जानिए ये एक से एक केस हम लोगों ने रडार सॉफ्टवेयर टूल के माध्यम से हम देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है आपकी निश्चय करने का, आपको डिटर्मिनेशन होने का, आपको अपने आप को प्रमोट करने का, और अपने आप को प्रमोट आप तब कर पाइएगा जब एक सही टूल्स के साथ जुड़िएगा। जब तक टूल्स आपका सही आपसे नहीं मिलेगा
जब तक आपको प्रमोट करने के लिए कुछ अच्छे वे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, तब तक आप इसमें सफल नहीं होंगे, है ना। इसी आग्रह के साथ हम कहेंगे जे आप लोग सभी हमारे जैसा सक्सेस यदि आप देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो आप भी एक अच्छे टूल से रडार ऑफ सॉफ्टवेयर से जुड़िए, अच्छे प्रैक्टिशनर बनिए, सिंगल मेडिसिन प्रेस्क्राइबर बनिए और क्रॉनिक डिजीज का मास्टर बनिए। जब क्रॉनिक डिजीज का मास्टर जब बनिएगा, तभी समझिएगा या आप अपने आप को एक अच्छे होम्योपैथ के रूप में देखिएगा। समाज आपको देखेगा, समाज आपको जानेगा, दुनिया जो सफर है उसको आप ठीक कर पाइएगा, और जिस क्रॉनिक डिजीज में सफलता आपको प्राप्त होगा, आपका सक्सेस कोई जिंदगी में नहीं रोक सकेगा और न रोकेगा। आज के थैंक लिए यू सो मच। इतना ही। हाँ, मैडम को निश्चित रूप से कहेंगे बहुत बहुत बधाई फिर से, ये आज हमें मौका दिए और हम आज आप लोगों के बीच अपना बात को रख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम यदि हो सके तो इसी ये में हम कहेंगे कि हम एक कोर्स को चला रहे हैं, जो रेपेट्री के माध्यम से कैसे हम एक रेपेट्रियन डॉक्टर बन सकते हैं। रेपेट्री के जी सर। जो रूब्रिक है, कन्वर्सन ऑफ पेशेंट लैंग्वेज इनटू द रूब्रिक, उसको बताते हुए कैसे मिनिमम मेडिसिन में पहुंच पाएंगे, उस टूल्स को कैसे यूज करेंगे, है ना, एनालिसिस केस को कैसे करेंगे, कैसे फॉलो अप करेंगे, कैसे एग्जैक्ट केस ट्रेकिंग करेंगे, किस प्रकार से हम एक सिंगल मेडिसिन में पहुंच पाएंगे, वो सारा का सारा जो है जो हमने अपने लाइफ में सीखा है, देखा है ना, वो आपको हम बताने का काम करते हैं। तो ये 3 महीना से हम ऑलरेडी हम मैडम शुरू किए हैं, ऑनलाइन क्लास शुरू जी। किए हैं, जो कोर्स चला रहे हैं। वो कोर्स का वीडियो हमारे पास है, तो यदि काइंडली आप दिखा देते तो जी सर। ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम चाहते हैं ये जो वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो में सारा बात कहा गया। जिसको भी कोई भी इंफॉर्मेशन जानना है, बस समझना है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरा वेबसाइट पर आप जा करके इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हम आपको एश्योर करते हैं ये कोर्स में यदि आप आ जाते हैं, मेरे डिजाइन को अपना प्रैक्टिकल कोर्स है, जो 6 मंथ का ड्यूरेशन है मात्र, और 6 महीना से यदि आप इस कोर्स को कर लेते हैं, तो आपको क्रॉनिक डिजीज का मास्टर बनाने में या कोई चीज क्रॉनिक डिजीज को ऊपर ठीक करने में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने का हम काम करते हैं, करे हैं। जी सर। विगत 10 साल से चला रहे हैं मैडम। 2010 से हम चला रहे हैं ऑफलाइन में, ये 3 महीना से हम ऑनलाइन क्लास स्मार्ट क्लास स्टार्ट किए हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से इस वीडियो को दिखा दें। जी सर, इससे पहले कि मैं वो वीडियो चलाऊं, तब तक जब तक हम वो वीडियो दिखाएंगे, तब तक प्लीज़ आप लोग सारे जो लर्नर्स आज आए हैं, आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस लिख दीजिए चैट में सर के लिए। अगर कोई क्वेश्चंस है आपके पास तो वो चैट बॉक्स में अभी लिख दीजिए। जब तक वीडियो प्ले होगा तब तक आप लोग क्वेश्चंस लिख दीजिएगा, सो दैट हम जल्दी से क्वेश्चंस ले पाएंगे। ऑलरेडी टाइम हमारा रन आउट हो चुका है, बट हम 5-10 मिनट क्वेश्चन ज़रूर लेंगे। Hi, very good morning to all my dear teachers, doctors, students, and lovers of very good morning to all. Welcome to my teachers, coaching institute, doctors, myself, student Dr. B.K. Bharat, and founder teacher, lovers of and mentor. Welcome to this institute. My कोचिंग आज आप लोगों के लिए डॉक्टर सीरियसली उन स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स एंड लवर्स ऑफ होम्योपैथी के लिए कैरियर ओरिएंटेड कोर्स आज आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं। स्पेशली उसके बारे में आप लोगों को डॉक्टर्स समझाने होम्योपैथी के लिए आपके बिहेवियर ओरिएंटेड कोर्स आप सही सुने हैं, ऑफर कर रहे हैं। कैरियर ओरिएंटेड उसके बारे में कोर्स आप लोगों को होम्योपैथी हम आपके बीच मौजूद है। आप सही सुने हैं, ये कैरियर ओरिएंटेड में ये पहली बार मैं होम्योपैथी विगत 10 सालों से ये सक्सेसफुली मैं चला रहा। विगत 10 सालों जिसमें
मोर देन 300 चला रहा हूँ डॉक्टर्स, जिसमें बन करके मोर देन अपने करियर को डॉक्टर सक्सेसफुली बन करके और ब्राइट किया है। अपने करियर जिसमें कंफ्यूजन था और ब्राइटनेस करियर को लेकर के, जिसमें इसमें कॉन्फिडेंस लेवल कम था, इसमें लगता था कि हमें काश इसमें और अच्छी नॉलेज हमें मिलता, इसमें लगता था कि हम काश अपने फील्ड में और अच्छी नॉलेज से डिग्री लेने के बाद वो अपना फील्ड में प्रैक्टिस कर पाते। लेकिन लेने के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो अपने करियर कर पाते, इस प्रति के माध्यम से आगे बढ़ाने का, जो अपने कॉन्फिडेंट लेवल नहीं होने के कारण माध्यम से आगे बढ़ाने का, ये हमने देखा है। मैं नहीं होने के ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं एक 30 years टीचिंग माई एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूँ और 30 years प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का टीचिंग एक्सपीरियंस की मैं और 30 years प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर्स प्रैक्टिशनर्स अनुभव किए ऐसे हैं, बहुत सारे जो ऑलरेडी भटक चुके हैं डॉक्टर्स, वो पॉलीफार्मेसी कर रहे हैं, ऐसे हैं होम्योपैथिक का जो ऑलरेडी सिद्धांत है उससे भटक चुके हैं, पॉलीफार्मेसी कर रहे हैं, काउ होम्योपैथिक का अवस्था को रोकने के लिए भटक चुके। मेरा एक छोटा सा प्रयास है जो हमने अवस्था को 10 साल से और मेरा एक छोटा सा प्रयास है करके हमने ये साबित किया है कि इसी इंस्टीट्यूट से जो भी स्टूडेंट ट्रेनिंग लेकर के निकले हैं वो इंस्टीट्यूट से अपने जो भी होम्योपैथिक फील्ड में ट्रेनिंग लेकर के एनिमल साहब की बताए हुए मार्ग पर अपने उनके सिद्धांतों पर लॉ मिनिमम को अपनाते हुए क्लासिकल वे में प्रैक्टिस करने में सक्षम हुआ है, वो अपनाते हुए डॉक्टर्स एंड क्लासिकल प्रेरणा के करने का सक्षम हुआ है। मेरा हौसला स्टूडेंट्स के पैर उन लोगों की प्रेरणा से ही मेरा हौसला पुलिस को आगे बढ़ाने का और उन लोगों की सिद्धांत प्रेरणा से ही सही माने में इसको आगे अपनी प्रैक्टिस काल में जो कठिनाइयां सामना हमको करना पड़ा अपनी प्रैक्टिस, हम लोगों को कोई समझाने वाला बताने वाला बात नहीं करने वाला कोई नहीं था जो सही रूप से समझाने वाला बताने वाला हमको जो सही रूप से अनुभव के माध्यम से पूरा कर सके। अपनी मेहनत के बल पर, अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर, अपनी मेहनत के बल पर, ये सही माने में अपने टीचिंग यदि अपने अनुभव के आधार पर देखा, अपने स्टूडेंट के बीच सही माने में, अपने डॉक्टर्स के बीच, प्रैक्टिशनर्स के बीच, अपने स्टूडेंट के बीच सही मार्गदर्शन किया जाए, के बीच सही ट्रेनिंग दिया जाए, सही ट्रेनिंग लेकर के यदि उनकी स्किल को डेवलप करा दिया जाए तो अपने फील्ड में निश्चित रूप से वह सक्सेस होंगे। इसी आशा से मैं एनिमल साहब की जो सिद्धांत है, जो उन्होंने सेकेंड एफोरिज्म में हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर का जो सपना देखा, उसको 100% पूरा करने में जिस ढंग से प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है, जिस ढंग से एक विशेष सब्जेक्ट जो रेपेटरी खास करके मैथमेटिका के नॉलेज के साथ यदि किसी स्टूडेंट को, डॉक्टर्स को, प्रैक्टिशनर को यदि बता दिया जाए, समझा दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो अपने करियर को सही रूप में वह सही दिशा दे सकता है। इसी कारण हमने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को 2020 में 1 जुलाई को ऑनलाइन लाइव स्मार्ट क्लास का प्रारंभ किया है, जिसमें 59 स्टूडेंट्स एडमिशन लेकर के इसका ट्रेनिंग ले रहे हैं। सक्सेसफुली करियर को देखते हुए हमने 6 मंथ्स की कोर्स में ऑनलाइन लाइव स्मार्ट क्लास के अंदर रूब्रिक हंटिंग से शुरू करके पेशेंट को लैंग्वेज को कैसे रूब्रिक में कन्वर्ट किया जाए, उसका ट्रेनिंग के साथ साथ मैथमेटिका का नॉलेज, पोटेंसी का नॉलेज, केस टेकिंग का नॉलेज, केस टेकिंग के माध्यम से कैसे केस को एनालिसिस किया जाएगा, एवल्यूशन किया जाएगा, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनाने में एवं फॉलो अप करने में कैसे एक
जटिल से जटिल केस को, नए से नए केस को हम लोग सफलतापूर्वक प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। वह हमने ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। जो सभी स्टूडेंट्स इसे बहुत ही अहम मानते हैं। उन्होंने अनुभव किया है या इस इंस्टीट्यूट में जो भी हमने उनको मार्गदर्शन दिखाते हैं अपने अनुभव का, उनको लगता है ये अनुभव उनके फील्ड में एक डॉक्टर्स के रूप में करियर बना करके सक्सेस हो सकते हैं। इसलिए मैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन शुरू किया है। आप सही माने में आप लोग चाहते हैं कि हम अपने करियर इस होम्योपैथी में बना सकते हैं। नौकरी के अलावा यदि आप अपने करियर को यदि डॉक्टर्स ओरिएंटेड बना लेते हैं तो ये एक ऐसा सम्मानजनक डिग्री के साथ साथ एक अच्छे डॉक्टर का परिचय आप समाज में दे सकते हैं। जो पीड़ित मानव है उसका आप सेवा कर सकते हैं। ये एक ऐसी पैथी है जो आप सब जान ही रहे हैं और हमने प्रैक्टिस में इस चीज को अनुभव किया है। ये सही माने में जो होम्योपैथिक मेडिसिन यदि सही रूप से सिमिलिनम मेडिसिन तक पहुंच पाए किसी रोगी के लिए, वह यदि रेमेडी के रूप में काम करता है तो कठिन से कठिन बीमारी, जटिल से जटिल तकलीफ और कष्ट को वह कम से कम समय में क्योर करने में सक्षम होता है। ये इंस्टीट्यूट आपके लिए है। इसलिए ये विगत 10 सालों से जो भी स्टूडेंट्स इस इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर के अपने फील्ड में गए हैं और सक्सेसफुली एनिमेन साहब के दिया हुआ मार्ग का जो ट्रेनिंग उनको यहाँ मिला है वह उसको सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। आप चाहे आप भी अपना करियर इस इंस्टीट्यूट से बना सकते हैं। मेरा मानना है यदि आप हमें मौका देंगे तो मैं आपके लिए निश्चित रूप से वह ट्रेनिंग देने में सक्षम होंगे। तो इसी क्रम में हम एक ऑफर आपको देने जा रहे हैं। ये 6 दिन का डेमो क्लास फ्री आप 6 दिन डेमो क्लास आप कर करके ऑनलाइन अपना इंस्टीट्यूट का जो क्वालिटी है समझने में आपको मदद करेगा। तो मैं इस सबको आह्वान करता हूँ कि जो चाहते हैं हम अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं, जो जिनको लगता है हमें कमी है, तो आप आइए हमसे जुड़िए और कम से कम 6 दिन का फ्री डेमो क्लास ज्वाइन करके यहाँ के क्लास की क्वालिटी को आप समझने की प्रयास करें। बस इतना ही आप लोगों से मेरा अंतिम निवेदन है और आशा करते हैं कि मैं अपने इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप लोगों को निश्चित रूप से एक अच्छे करियर सर अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। जी सर। चलिए सर फिर हम थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं। कुछ लोगों ने आपके लिए क्वेश्चन भेजे हैं और पहला क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे जान सकते हैं कि कौन सी रिपोर्टरी इस केस के लिए अच्छी रहती है लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन से रेपेटरी अच्छा होगा? रेपेटरी तो जो कैंट रेपेटरी सबसे अधिक मात्रा में आपको अच्छा रहेगा प्रैक्टिस लाइफ पे, चाहे हमने किया है। हालांकि ऐसा नहीं कहेंगे कोई भी रेपेटरी
खराब है अच्छा ये बात तो नहीं जाएगी इस स्तर पर, बस इतना ही समझना है जे जिससे हमें सिविलियन मेडिसिन पर पहुंचाने का काम करेगा और जो सबसे अधिक मात्रा में अपडेट है। अपडेट मीन्स जो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन रूब्रिक का किस किताब से किस बुक से आपको मिल रहा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बुक जी फॉर्म में सर। कहाँ पर अवेलेबल है, तो हम यही कहेंगे आप लोग को सजेशन देंगे जो आप लोग बुक फॉर में केंट साहब की फिलोसफी के आधार पर रेपेटिव बना हुआ उन्हीं का बुक को एनलार्ज किया गया, उन्हीं की बुक को ही कुछ चैप्टर को बढ़ा दिया गया है। अब बढ़ा करके एक फ्रेडरिक सोयल साहब ने एक सिंथेसिस रेपेटरी, जो पहले तो रडार आया उसके बाद ही बुक आया, तो उसको बुक फॉर्म में लाया गया है, जो डॉक्टर बीजेन कंपनी जो ग्रुप है जिसके माध्यम से आज हम लोग वेबिनार में बैठे हुए हैं, तो उन्हीं के प्रयास से आज सिंथेसिस रेपेटरी बुक फॉर्म में अवेलेबल मिल रहा है। उस बुक में जो सारा का सारा जो रडार ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर जो आप रूब्रिक आप देखे जो आपको बताए हैं, एक से एक रूब्रिक, एक से एक इंफॉर्मेशन अपडेट, हर साल कुछ न कुछ अपडेट इंफॉर्मेशन आते ही रहता है जो सॉफ्टवेयर के जी अंदर हम सर। लोग को अवेलेबल हो जाता है। और उसके इस सॉफ्टवेयर को समझने के लिए, इस अपडेट अपने आप को अपडेट रखने के लिए, अपडेट इंफॉर्मेशन जानने के लिए कम से कम एक सिंथेसिस रेपेटिव को यदि आप 9.1 वर्जन मिनिमम है जो अवेलेबल है, जो रडार ऑफिस के अंदर ज़्यादा काम कर रहा है, उसी का ये लिया गया है, तो 9.1 अवेलेबल है अभी, उसको आप खरीद लीजिए। और हम अपने सारे इंस्टीट्यूट में अपने स्टूडेंट को, हम अपने जो कोर्स चला रहे हैं उसमें हम सिर्फ सिंथेसिस रेपेटिव को ही हम हंटिंग कराते हैं, उसमें सारा का सारा रूब्रिक अवेलेबल है। जो अवेलेबल नहीं है वो रडार ऑफिस से जैसे ही जुड़ जाइएगा तो हर साल अपडेट होते रहता है, वो अपडेट आपको ऑलरेडी मिलते ही चला जाता है और अपने आप को अपडेट करते चले जाएंगे। तो हम कहेंगे कि आप सिंथेसिस रेपेटिव यूज कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी सर, मैं बोल रही थी कि ऑलरेडी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ। आपसे एक सवाल है कि कौन सी रिपोर्टरी बेस्ट है? तो मैंने कहा तो ही है आई तो गेस वही आपने repetitive- ऑलरेडी बता दिया है। हाँ एक और क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास कि क्या वो आपका ये वेबिनार दोबारा देख सकते हैं? तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि जो सारे रजिस्ट्रेंट्स हैं उनको ये वेबिनार का रिप्ले लिंक मिलेगा उनके मेल पर। तो अगर आपने आज के वेबिनार के रजिस्टर किया है तो आपके मेल पे 24 घंटे बाद इस वेबिनार का रिप्ले लिंक आ जाएगा। I guess we have taken up all the questions, sir. So let's wind up here. Thank you, sir. Thank you, Dr. B.K. Bhagat, sir, for such a great experience. Very warm gratitude on behalf of Radar Opus and on behalf of BGN. I apologize if I missed any question from anybody, but we are already running out of time, so I have to wind up now. To inform all of you, we have an upcoming free webinar on using eliminative rubrics to reach the minimum by Dr. Chakshu Mishra, which is scheduled for 3rd of October 4 p.m. You will soon receive the link for registration in your mail and on our social media handles. But I'm also providing you the registration link in the chat right now so that you can quickly register yourself. Hoping to see you all there. Thank you so much, sir. आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि आप लोग को, खास करके बीजेन को और आपको, जसपाल जी को, ये हमको आपने मौका दिया और हम कुछ बता पाए, कुछ समझा पाए और कुछ उन लोग से रूबरू हो पाए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और ये पहली बार आपने ये चांस दिया, तो सबको फिर से धन्यवाद देते हुए अपना ये जो है Thank you, sir. Thank you, sir.
Pleasure was ours. So I would like to thank you all learners who came here today, who joined us today, and be and were a part of this event today. Thank you so much, Bhagat sir, and thank you Radar Opus team who has been working hard to make this webinar a success. Thank you everyone. Good evening. Have a great day. Keep learning. Yes, and good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, all of you.